Dear all, welcome to Civil Services with ZAKI. Today we are going to analyze the Civil Services UPSC Prelims question 2022. And as you know, in 2022, about 44 questions directly asked from the ecology, environment, civil, and geography and science and tech, in which 22 questions directly from our Civil Services with ZAKI. As you know, we all 22 questions we discussed in our earlier video, comprehensive analysis part first. So if you go to our YouTube channel and see these 22 questions, this is very significant for the Civil Services Prelims 2022. So now we discuss today the comprehensive question analysis of UPSC-CSE PT 2022 part 2, and as you know, it is bilingual. It means English and Hindi both. And as you know, every year about 40 plus question asked from ecology, environment, geography and science and tech. सो जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों को मैंने पिछला वीडियो दिया था, और ये पिछला वीडियो जो था वो मैंने बताया था कि उसमें से 22 क्वेश्चन जो सीधे हमारे सिविल सर्विसेज विद ज़की से आए थे, और मैंने वो लिंक भी दिया था, चाहे हमारा यूट्यूब चैनल हो चाहे हमारा ब्लॉग हो, उसमें आप जाके उसको आप मिला सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हर वर्ष आप देखेंगे तो ये 3 सब्जेक्ट यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी, भूगोल और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये 3 चीज जो होता है, ये 3 चीज से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग ऑन एन एवरेज आप देखें तो 40 प्लस यानी 40 प्लस क्वेश्चन एवरी ईयर होता है। अगर एक्सेप्शन 1-2 साल को अगर आप छोड़ सकते हैं तो लगभग हर साल का आप क्वेश्चन उठा के देख लें, 40 प्लस तो रहेगा ही रहेगा। तो उसी तरह से 2022 में जो था वो 44 क्वेश्चन था। जिस 44 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन जो था वो सीधे हमारे सिविल सर्विसेज विद ज़की से था, जिसको आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो पहले मैंने एनालाइज किया था, जिसका पार्ट फर्स्ट था, भाग 1 था। अब ये भाग दूसरा हम कर रहे हैं, वो क्वेश्चन जो आउटसाइड सिविल सर्विसेज विद ज़की से था, यानी कि वो अप्रत्यक्ष रूप से था। प्रत्यक्ष रूप से उसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो प्रत्यक्ष रूप से दावा किए थे 22 का, वो आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं, हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन एनालिसिस है, ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर आप इस बार यूपीएससी पीटी 2023 दे रहे हैं, क्योंकि जब हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो उसमें कई क्वेश्चन आपके बनते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आपके सामने आती है। जैसे अभी आगे आप देखेंगे कि किस तरह से इसमें आती है। जैसे कि इससे पहले हमने आपको बताया था कि नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड किस चीज से है, तो वो आपको बताया था कि राइस कल्टीवेशन से। उसी राइस कल्टीवेशन का आगे था वो, चूंकि मैंने बताया था वो एनसीईआरटी सीरीज में था, वेरिएबल गैस में, तो उसमें मैंने एक ब्रीफली बताया था कि ये राइस कल्टीवेशन से होता है, तो वो पहला सही था, तो वो डायरेक्ट हो गया आपका। लेकिन उसी को आगे बढ़ते हुए दूसरा क्वेश्चन जो था वो इनडायरेक्ट हो गया। तो चलिए देखते हैं, और so now we will discuss and move forward to see the question number 1. So see here, number 1 question from ecology and environment. Number 1, 22 question. So as you know, this 22 marks is the set A of UPSC PT 2022. So you can easily match this question from our from your question booklet, and question booklet A question booklet. So system of rice intensification, in short it is called SRI, of cultivation in which alternate wetting and drying of the rice field practiced result in: number 1, reduced seed requirement; number 2, reduced methane production; number 3, reduced electricity consumption. So it is select the correct answer using the code given below. Number 1 A 1 and 2, number B 2 and 3, number C 1 and 3, number D 1, 2, 3. So see here, reduced seed requirement, it's right. Reduced methane production, it's also right. Reduced electricity consumption, it's also right. So it is answer is D, because these SRI system use less irrigation. It means you can less water means less electricity means less production of the methane, but the more production in this, so it is alternative wetting and drying, it is called A
AWD system. So but it also increase in nitrous oxide, but nitrous oxide is less harmful than the methane. So answer here is D. तो ये जो था ये अल्टरनेट सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन एसआरआई एक तकनीक है जिसमें एक क्या होता है अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, यानी अल्टरनेट वेट। पहले जो लोग चावल की खेती होती थी उसमें लोग ये समझते थे कि ये जो है एक्वेटिक है, यानी पानी में इसको जब ज्यादा पानी दे देने से उससे क्या होता था कि मीथेन का प्रोडक्शन बढ़ता था, पानी भी आपको ज्यादा लगता था। अब ये सिस्टम जो है सिस्टम ऑफ इंटेंसिफिकेशन ऑफ राइस में क्या है कि सीड भी कम लिया जाता है और चूंकि पानी भी कम होता है, चूंकि अल्टरनेट ड्राई एंड वेटिंग वाली बात होती है, तो इसका मतलब है कि मीथेन का भी कम प्रोडक्शन होता है, और जब पानी कम होगा इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो खर्चा हो रहा था वो भी कम, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम होता है। तो ये तीनों का तीनों सही है, यानी डी आंसर है। तो चलिए इसको देखते हैं आगे। तो ये कहाँ हुआ, तो जैसे इसको कहा जाता है SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सो इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन द मेडागास्कर in 1980s, and since then several countries the world have been practiced it, including India. It promises about 15 to 20% groundwater improvement on rice productivity. So see, save 50 to 20% groundwater. So it's also prevent the groundwater depletion. SRI reduce water requirement, electricity consumption for the irrigation, so also reduces. So if we see here, give equal or more productivity than the conventional rice cultivation. So it is also give more productive rice cultivation with less water, less seed and fewer chemicals. So this is very revolutionary. So under the SRI paddy field not flooded but kept moist during vegetation phase, and later 1 inch water is maintained. SRI require only about half of the much water normally applied in the irrigation of rice. So if you use irrigation in the rice, then you only use half of the in this system, SRI system, only 50% of the water consumed. So see here, so SRI paddy cultivation require less water involvement, less expenditure and give more yield. So that's beneficial for small and marginal. So it is also beneficial for the small and marginal farmers. So our 1 lakh farmers are experimenting this system worldwide at present. So if we see the present scenario, about 1 lakh agriculture farmers are using this technique, and this technique is very revolutionary. So this is called system of rice intensive cultivation, and the technique used in this cultivation is called AWD, alternate wetting and drying phenomenon. So technique. So तो ये जो है, अब इसको हिंदी में ब्रीफली आपको बता देते हैं। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जो था ये पहला बार मेडागास्कर में 1980 के दशक में किया गया था, और मेडागास्कर से चलते हुए चूंकि नॉर्मल जो हम लोग चावल की खेती करते हैं उसमें काफी पानी लगा दिया जाता है, और अगर इरिगेशन किया जाता है तो लोग समझता है, नॉर्मल लोगों के पहले में ये दिमाग में था कि राइस जो है सो पानी में होने वाला मतलब फसल है, एक्वेटिक, बट इट इज नॉट। लेकिन एक्वेटिक नहीं है, हाँ ये जरूर है कि वो सस्टेन कर सकता है, लेकिन ये एक्वेटिक नहीं है। तो क्या हुआ कि इसके बाद एक नया टेक्निक आया इसमें, तो इसमें अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग, यानी क्या हुआ कि अल्टरनेट ड्राइंग और वेटिंग सिस्टम से इसको करने लगे। इसमें क्या हुआ कि लेस सीड भी, चूंकि आप पानी जो था वो कम, चूंकि पहले क्या करता था जब आपको चावल को करना हो, उसको पौधे लगाना हो बीज को, तो उसमें क्या करता था कम बीज लिया जाता था, और उसका जो इंटेंसिफिकेशन मतलब इस तरह से किया जाता था कि पहले आप जो खेत था उसको 1 सेंटीमीटर मतलब पानी लगा के आप देख लेंगे, तो फ्यूअर सीड लगा के आप देख लेंगे तो 1 इंच पानी से आपको भर देते थे ताकि वो मॉइस्ट हो जाए, और जैसे ही वो हो गया उसके बाद ड्राई एंड वेटिंग अल्टरनेट सिस्टम से करके उसको, उसमें क्या होता था कि जो पहले काफी पानी लगा दिया जाता था उसका 50% पानी अब बच गया। अब उससे क्या हुआ कि जब पानी बच गया तो इरिगेशन का आपका कम बिल आएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगा, सीड भी कम हुआ, और पानी चूंकि ज्यादा जमा नहीं है तो मीथेन का भी कम
प्रयोग होगा, यही क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो उसी सीरीज में 23वां क्वेश्चन है। सो द सेकेंड क्वेश्चन, 23rd questions of the set A of the UPSC prelims. Which one of the following lakes of West Africa has become dry and turned into desert? Number 1, Lake Victoria, A. B, Lake Fogombine, Lake Oguta, Lake Volta. So Lake Victoria, no. Lake Fagubine, yes. This is Lake Fagubine. Lake Fagubine is situated in the Mali. So Lake Oguta, not, and Lake Volta. So answer is B. तो इसमें यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन झील है जो पश्चिम अफ्रीका में सूख के रेगिस्तान बन गया, मरुस्थल बन गया? ये कौन सा है? लेक विक्टोरिया, ये नहीं, आप जानते हैं लेक विक्टोरिया अभी भी है। लेक फैगुबाइन, तो लेक फैगुबाइन जो है यानी कि झील फैगुबाइन जो है, फैगुबाइन झील, विक्टोरिया झील, ओगुटा झील, वोल्टा झील, तो ये झील लेक फैगुबाइन है, ये माली में है स्थित है, ये टिम्बकटू के पास है। और इसमें हम देखें तो इसका आंसर आपका जैसे कि मैंने बताया डी होगा। तो देखते हैं कि इसके बारे में थोड़ा, जैसे कि ये बताया ये रिसेंटली न्यूज से रिलेटेड है और ये आप चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो लेक फैगुबाइन, it is an isolated lake in Mali west of the Timbuktu. It lies north of the Niger River and Messina Depression, and it is reached by the branches of the Niger and its time in the floods. So lake once the largest in the West Africa. So once this lake is regarded as the largest lake in the Western Africa, used to be the annual flooding from the Niger River, but it started disappear after the catastrophic drought in 1970s, and after 1970s they dry rapidly and more than 2 lakh people abandon their traditional livelihood. So more than 2 lakh people are affected by these phenomenon, and also they lost their livelihood in the Western Africa. So as you know, the African countries are basically one of the most significant region for the conflict is the resources, so lack of the resources, natural resources. So this is here, so traditional, so livelihood. So see how this lake basically disappeared. So if you see in this picture in 1984, you can see the water here. See here, Lake Fagubine, water here. But now if you see the 2020 pictures here, these are desert, these are converted into the desert. So you can see the 2020 pictures, and also you can see the 84 pictures. In 1970 and before the 1970, this lake is so large, so considered is the largest lake in the Western Africa. So that's why. So now what to learn in this scenario? तो ये झील जो था, जैसा कि मैंने बताया कि 70 के दशक से सूखना शुरू हुआ अकाल पड़ने के बाद, और उसके बाद आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से, और तकरीबन 2 लाख लोग इससे प्रभावित हुए, उनकी आजीविका समाप्त हो गई। तो अगर हम देखें तो ये देखिए 1984 का ये फिगर है, सेटेलाइट फिगर, तो ये देखिए यहाँ तक लेक है, ठीक है, और 70 के दशक में ये यहाँ तक था, 70 के दशक से, और ये अब पश्चिमी अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक माना जाता था। लेकिन आप देखें इसी को आप सन 2020 का फिगर अगर देखते हैं, ये सन 2020 का फिगर, तो ये देखिए पूरा ड्राई हो गया, कहीं भी पानी नहीं बचा, हल्का सा पानी यहाँ और यहाँ है, वो भी 2022 आते आते पूरा साफ हो गया। तो ये पूरा बहुत तेजी से साफ हुआ है, इस वजह से ये फिक्स पूछा है। इसी तरह से अब आपको जो नेक्स्ट ईयर है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कौन सी झील का क्या पर्यावरणीय प्रभाव हो रहा है। तो आपको बता दें कि तकरीबन 5 साल के बाद एक और दुनिया का सबसे बड़ा झील
समाप्त हो जाएगा वो झील अमेरिका के उथा में है और जिसका नाम है ग्रेट साल्ट लेक। तो ग्रेट साल्ट लेक भी 5 साल के बाद, यानी अभी 2023 चल रहा है, तो 2028-27 तक ये भी पूरी तरह से सूख जाएगा। ये फेनोमेनन जारी है, तो ये भी हमेशा याद रखें। जैसा कि मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, जो 42वां क्वेश्चन है। सो नाउ वी मूव द थर्ड क्वेश्चन, 42nd क्वेश्चन of the set A. So consider the following statement. Climate Group is an international non-profit organization that drive climate action by building large network and run them. Yes, it is right. So the International Energy Agency, in the partnership with the Climate Group, launched a global initiative, EP100. EP100 brings together leading companies committed to driving innovation in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering the emission reduction goal. Another fourth is some Indian companies are member of EP100 and also the international agency is the secretariat to the under-2 coalition. Which of the following statement given above are correct? A 1 2 3 4 1 2 3 1 2 4 5 1 3 4 2 3 and 5 only 1 2 3 4 5 only. So see here. तो ये 42वां क्वेश्चन था। जैसा कि मैंने बताया, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित पर विचार करें, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें, कथनों पे विचार करें। क्लाइमेट ग्रुप एक अंतरराष्ट्रीय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभकारी संस्था है, जो क्लाइमेट एक्शन के लिए जो है सो बहुत बड़े बड़े नेटवर्क बनाता है। उसी तरह से है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके पार्टनरशिप के साथ क्लाइमेट ग्रुप के साथ लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव जिसको कहते हैं EP100। उसी तरह से EP100 ब्रिंग टुगेदर द लीडिंग कंपनी एंड कमिटेड टू ड्राइविंग इनोवेशन इन एनर्जी इफिशिएंसी, यानी जो एनर्जी इफिशिएंसी, एनर्जी ऊर्जा दक्षता में नए नए अनुप्रयोग करके और इसमें जो है सो प्रतियोगिता करके, मतलब उसमें शामिल करके, और ये इमिशन को भी रिडक्शन करने का गोल रखा है ये। तो ये था। उसी तरह से कुछ भारतीय कंपनियां इसके सदस्य हैं। और इसका साथ है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है, जो इसका सेक्रेटेरिएट है, जिसका नाम है अंडर-2 कोलिशन। तो इस पांचों में से कौन सा है? तो पहला देखिए क्लाइमेट ग्रुप, ये सही है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, ग्लोबल लेवल पे 120 कंपनी का है, ठीक है, तो ये है। उसी तरह से द इंटरनेशनल एजेंसी पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च्ड EP, ये गलत है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, नॉन प्रॉफिट है, इसका कोई भी आपका कॉर्पोरेट या आपका कोई भी गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, चाहे आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो, इससे कोई लेना देना। तो 2 आपका गलत हो गया। EP100 ब्रिंग टुगेदर लीडिंग कंपनी टू कमिटेड द एफिशिएंसी इंक्रीजिंग द कॉम्पिटिटिव वाइल इमिशन। तो ये जो है, ये आप देखिए, तो ये बिल्कुल सही है। EP का मतलब होता है एनर्जी प्रोडक्टिविटी, तो एनर्जी प्रोडक्टिविटी 100, मतलब जैसे कि मैंने बताया 120 से जुड़े हुए कंपनी, तो EP100 जो है वो बिल्कुल सही है। उसी तरह से सम इंडियन कंपनी मेंबर्स ऑफ EP, ये भी सही है, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया आपका, ये भी सही हो गया। द इंटरनेशनल एजेंसी इज द सेक्रेटेरिएट टू U2 कोलिशन, तो ये एक इनका ये है। लेकिन ये जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कोई कोलैबोरेशन नहीं, कोई गवर्नमेंट से, ये इंडिपेंडेंट है। तो इसका जो भी सेक्रेटेरिएट है वो डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज होने की वजह से ये भी वक्तव्य गलत हो गया कि इसका ये सेक्रेटेरिएट। तो इसका मतलब आपका हो गया इस 5 में से 1, 3 और 4, तो 1, 3 और 4, तो इसका मतलब हो गया B आंसर। तो इसका जवाब हो गया B। सो आंसर इज B। So next explain this question. So the climate group is a non-profit organizations work business and government leader around the world to address the climate. ये काम करता है, आप देखेंगे तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी बिजनेस वाले हैं उनको, गवर्नमेंट को, सबको समझाना होता है। लेकिन आप हमेशा याद रखें, इससे पार्टनरशिप ये नहीं करते, ये
हमेशा क्लियर रखिए कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। द गोल इज द वर्ल्ड नेट जीरो, और इन्होंने एक लक्ष्य रखा इमिशन का, नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2050, यानी इनका ये लक्ष्य है कि भाई नेट जीरो हमारा 2050 तक होगा, और ग्रेटर प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, और सभी लोगों के लिए ज्यादा प्रोस्पेरिटी, ज्यादा संपन्नता होनी चाहिए, इसका भी इनका एक लक्ष्य है इनका। द ग्रुप ऑल्सो हैज प्रोग्राम टचिंग द रिन्यूएबल एनर्जी, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जैसा कि मैंने बताया इनोवेशन टेक्निक जो था तो ये करते हैं। उसी तरह से इसको हम देखें तो क्लाइमेट ग्रुप इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ द अंडर 2, जैसा कि मैंने इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो अंडर 2 कोलिशन कहा जाता है। और ये जो कोलिशन है ये स्टेट एंड रीजनल गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड दैट कमिटेड टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस इमिशन टू नेट जीरो बाय 20। तो ये आप देखिए, तो ये है क्लाइमेट ग्रुप का सेक्रेटेरिएट अंडर 2 अलायंस फॉर द स्टेट एंड रीजनल गवर्नमेंट, यानी ये आपको कहीं भी रीजनल कहीं भी इसका ये होता है, यानी ये डिसेंट्रलाइज तरीके से होता है। अब अगर देखें इसमें तो क्लाइमेट ग्रुप वाज इनिशिएटेड, ये बना कब था तो 2003 में बना था, और मतलब ये शुरुआत की गई थी और 2004 में ये बना था, और जो एक सीईओ इसके को-फाउंडर है उसका नाम था स्टीव हावर्ड। तो स्टीव हावर्ड साहब ने इसको इनिशिएशन किया था। So Steve Howard launched in 2004 and by Steve Howard. So climate group states that it's function independently of any corporate and government entity. ये बहुत बड़ा है, वो अपने उसके साइट पे आप जाएंगे तो वो क्लियर कट लिखा है कि हमारा जो है वो आजादाना तौर पे है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है हमारा जो पॉलिसी, चाहे वो कारपोरेट हो या गवर्नमेंट हो, हम इन दोनों से अलग है। क्योंकि कारपोरेट कभी नहीं चाहेगा, गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगा कि इमिशन कम हो, क्योंकि इतना बड़ा कोयला है, इतनी बड़ी एनर्जी की वो लोग कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कारपोरेट और गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो लक्ष्य होता है वो पैसा कमाना है, चाहे दुनिया कुछ भी हो। तो ये प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए इन्होंने जो एक लक्ष्य रखा था ग्रेटर प्रोस्पेरिटी फॉर द ऑल, तो सब ग्रेटर प्रोस्पेरिटी कैसे होगा, तो इसीलिए ये क्लाइमेट ग्रुप जो था ये काफी इंडिपेंडेंट है गवर्नमेंट से। एनर्जी प्रोडक्टिविटी, जैसा कि मैंने बताया ईपी का फुल फॉर्म जो है एनर्जी प्रोडक्टिविटी, इसको 100 गोल ऑफ द इनिशिएट लेड बाय द इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट क्लाइमेट ग्रुप, जैसे कि क्लाइमेट ग्रुप मैंने बताया था ये एक इनिशिएशन दिया था, और ब्रिंग टुगेदर आवर 122 एनर्जी स्मार्ट बिजनेस। अब बिजनेस भी करा तो एनर्जी स्मार्ट बिजनेस की बात करते हैं, तो मेजरिंग द रिपोर्टिंग एनर्जी इफिशियंसी इंप्रूवमेंट, अब उसको एनर्जी इफिशियंसी इंप्रूव देखना है कि हमने किस तरह से लिया। अब शिफ्ट कर सकते हैं, चलो ये फॉसिल्स फ्यूल से रिन्यूएबल की तरफ आइए, तो ये सारी चीजें जो नया नया इनोवेशन है वो होता है। तो इंडियन कंपनी, जैसे कि मैंने बताया था कि इंडियन कंपनी भी इसमें शामिल है, और इसमें प्रमुख में इंडियन भारतीय कंपनियों में डालमिया सीमेंट, गोदरेज एंड बायस, JWS सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा हैवी इलेक्ट्रिक, स्वराज, उसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सब इसके मेंबर है। तो इसका मतलब ये है कि जो भारतीय कंपनियां हैं वो भी इसके मेंबर है, तो ये काफी ये इसका हो गया। अब चलिए अगला देखते हैं, ये भी पर्यावरण से है। चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, चौथा क्वेश्चन में इनमें से कौन पक्षी नहीं है। नंबर 1 गोल्डन मशीर, इंडियन नाइटजार, स्पूनबिल, व्हाइट इबिस। तो इसमें यह कहा गया कि गोल्डन मशीर, इंडियन नाइटजार, स्पूनबिल और व्हाइट इबिस, तो कौन था? आप जानते हैं इंडियन नाइटजार जो होता है एक छोटी सी पक्षी होती है, तो ये भी पक्षी है। स्पूनबिल, इसका जो चोंच होता है वो चम्मच की तरह होता है इसको, और ये व्हाइट इबिस, तो आइबिस जो व्हाइट आइबिस है ये भी आपका ये तो ये चिड़िया, तो इसका मतलब गोल्डन मशीर जो है ये आपको चिड़िया नहीं है, ये क्या है? मछली है। माह का मतलब होता है मछली, माही पर्शियन शब्द से लिया गया है, और शेर यानी शेर के मुंह के जैसा, यानी शेर की तरह दिखने वाला, इसीलिए इसको गोल्डन मशीर कहा गया। कहीं ये भी कहा गया है कि ये जो है इसका स्कल बहुत बड़ा होता है, तो माह, इसमें माह का मतलब मछली और शलाका का मतलब होता है
हिंदी में, तो महाशीर उससे बना है। तो ओवरऑल किसी से भी बना हो, लेकिन ये आपको गोल्डन मशीर जो है वो आपको जो है वो मछली है, बाकी ये सब बर्ड है। तो बर्ड है, तो ये पूछ रहा है नोट ए बर्ड, तो इसका मतलब ये हो गया, तो इसका मतलब आंसर आपका ए हो गया। तो चलिए देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं गोल्डन मशीर के बारे में। तो टोर पिटूट्रा या पिटूट्रा मासीर, इसका आप देखेंगे साइंटिफिक नेम आप कह सकते हैं, ये हिमालयन मसीर है, यानी ये बेसिकली हिमालयन रेंज में पाया जाता है। इसको गोल्डन मसीर भी कहते हैं, हिमालयन मसीर भी कहते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज है। देखिए आप हमेशा न्यूज में देखिए इंडेंजर्ड स्पीसीज वगैरह अगर न्यूज में आता है तो वो आपसे पूछता है, और हमेशा याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन है यूपीएससी का वो हमेशा आपको रिलेटेड रहता है करंट अफेयर से। सो स्पीसीज ऑफ क्रिप्टोनाइट फिश एंड दैट फाउंड इन द रैपिड स्ट्रीम, ये बेसिकली रैपिड स्ट्रीम में पाया जाता है। अब जैसे हम लोग जानते हैं जो रैपिड्स होता है, आप लोग जानते हैं कि जब हिमालय से नीचे आती है, और ये हम अक्सर आप लोगों को क्लास में पढ़ाते हैं, तो वो रैपिड स्ट्रीम में ये आपको मछली पाया जाएगा हिमालयन रीजन में। नेटिव रेंज विद इन द बेसिन्स ऑफ द, इसका जो ये है हिमालयन रीजन के जो प्रमुख 3 नदी तंत्र है जो मैं अक्सर आप लोगों को क्लास में ही पढ़ाता हूँ, उसमें इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, तो ये रिवर में ये पाए जाते हैं। सो द हिमालयन गोल्डन मसीर इज द नेशनल फिश ऑफ द पाकिस्तान, ये जो है पाकिस्तान का राष्ट्रीय मछली है, नेशनल फिश है। लेकिन कुछ स्टेट भी जो भारत का उसका भी राज्य मछली है ये। तो हिमाचल प्रदेश, अब याद रखिए कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, तो कभी कभी आपसे पूछ भी सकता है कि कंसीडर द फॉलोइंग, सो इवन इन फ्यूचर क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, Eastern Union Territory and Madhya Pradesh. Which of the following is the state fish of the of the following state? Golden Masir is the which of the golden Masir is the state fish of which of the following state? तो ये भी आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि ये कौन कौन से राज्य के आपके मछली है। तो ये आप चलिए देखते हैं ये गोल्डन मसीर दिखता कैसा है। और हम जानते हैं कि आप लोगों को हमेशा हम जब भी क्लास लेते हैं तो आप लोगों को विजुअल दिखाते हैं, ताकि विजुअल दिखाने से हमेशा हम आपको कहते हैं जब भी क्वेश्चन आप बनाइए, चाहे यूपीएससी, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी आप दे रहे हैं, तो आप हमेशा याद रखिए, रिमेंबर कि इसको रटने से नहीं होगा, नोट मेमोराइज, इसको मेमोराइज करना है आपको समझना है। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट्स, तो देखते हैं गोल्डन मशीर। तो ये देखिए, ये है गोल्डन मशीर, देखिए कितना बड़ा होता है, और ये एकदम गोल्डन कलर का होता है, गोल्डन कलर का होता है, इसीलिए गोल्डन मशीर या महाशीर कहा जाता है इसको। तो ये अब इसका इस तरह से बनाया जाता है कि इसका मुंह बड़ा होता है और शेर की तरह, इसलिए महाशीर। तो ये आपको आप देखिए ये हिमालय के और ये रैपिड्स उसी टाइप के एरिया में ये पाया जाएगा। उसी तरह से ये देखिए इंडियन नटजार है। ये इंडियन नटजार जो है ये छोटी सी चिड़िया होती है जो अक्सर आपको जंगलों में मिल जाएगी खास करके। उसी तरह से आगे आप देखें तो ये है स्पून बिल। स्पून बिल, अब ये स्पून बिल को आप लोग लोकल में अपने लोग गांव देहात में भी आप देखते होंगे, तो इसको दाबिल कहा जाता है, खुरपा दाबिल। तो यानी इसका जो है ये खुरपा जो होता है उसके तरह इसका ये है चोंच है, तो इसीलिए इसको खुरपा दाबिल अपने लोग गांव की तरफ कहते हैं। जो बिहार और यूपी से बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे। तो इसको स्पून बिल कहा जाता है। उसी तरह से दूसरा है, इसको कहा जाता है आपको व्हाइट इबिस। तो व्हाइट इबिस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, इसको हम लोग के इधर जो लोकल ग्राउंड में आप देखेंगे तो इसको हासिया दाबिल कहा जाता है। ये भी दाबिल चूंकि देखने में दोनों सेम लगता है, तो दोनों के जो चोंच है उसके फर्क से, तो ये सब पंछी है। तो ये था। अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट? अल्फाल्फा, अमरनाथ, चिकपी, क्लोवर, पर्सलेन, कुल्फा जिसको कहा जाता है, स्पंज। Select the correct answer using the code given below. Choice A 1, 3 and 4 only, 1, 3, 5 and 6 only, 2, 5, 4, 5 and 6 only, 1, 3, 4, 5 and 6 only. So as you know, nitrogen fixing plant वो plant होते हैं, those plant who fix the nitrogen. Basically in these choice
alfalfa, yes. Amarnath, no, it is a beets. Chickpea, yes. So, and clover is yes. Kulfa, kulfa, yes. Kulfa, no. Sponge, no. So five, so it is 1, 3, and 4 only. 1, 3, and 4 only. So answer is A. So answer is A. 1, 3, and 4. So see all these. So why this is not, why this is not, why this is not nitrogen fixing. So see here in the explanation. So nitrogen fixing is the essential biological process in the initial stage of the nitrogen cycle. As what is nitrogen cycle and all that, then you must join our regular class, and also subscribe my channel for the latest video on these all topic, specific topic by one. सो जैसा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन वो इनिशियल से होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। आप देखेंगे नाइट्रोजन एक साइकिल होता है, नाइट्रोजन चक्र जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसके बारे में अगर और जानना हो तो आप हमारे क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसी तरह आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन आप लोग शायद चैनल अभी तक सब्सक्राइब किए नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं, हो सकता है नहीं देख रहे हो, लेकिन ये आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जब यही में से 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपको जो आज हम एनालिसिस कर रहे हैं, आपको जब इसी में से 5-10 क्वेश्चन सीधा सीधा यूपीएससी में आएगा, तब आप लोगों को अफसोस होगा कि काश हम ये वीडियो देख लिए होते तो पहले हमको पता होता। जैसा कि मैंने 2018 में बताया था, 2021 में भी मैंने 45 वीडियो का सेट दिया था और उससे सीधा 22 क्वेश्चन आया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप लोग बहुत धीमे धीमे सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप लोग बढ़ाइए इसको। नाइट्रोजन प्लांट आर दोज दैट हैव रूट्स colonize a specific kind of the bacteria with the ability to extract nitrogen from the air and convert to usable nitrogen that used to help in growth। होता क्या है कि एटमॉस्फेयर से इसके जड़ में बैक्टीरिया का एक कॉलोनी होता है और उसमें ये फिक्स करने का काम आपका करता है। तो अब देखते हैं जो उसमें था, तो अल्फा अल्फा शुड बी डब्ड, इसको किंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता। तो ये तो आपको पहले था ही, बिकॉज ऑफ द मेक मोर रेसिडुअल्स नाइट्रोजन अवेलेबल सब्सिक्वेंट क्रॉप दैट एनी अदर लेग्यूम कैन ग्रो। जो नॉर्मल दाल वाला होता है, दाल वाला पौधा, वो इस तरह का फिक्सेशन करता है। उसी तरह से चिकपी प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल टू इंप्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। Another is red clover. Clover is a nitrogen perennial plant that produce showy red, purple or pink flower in the late summer. Another is, if we see the Amarnath, a species cultivation of the leaf vegetables. So it is pseudocercales and ornamental plants. And basically, if you see the kulfa is an annual succulent plant that has been considered both the यूजलेस बीट्स, इसको यूजलेस बीट्स कहा जाता है, लेकिन कभी कभी मेडिसिनल में भी, यानी कि औषधीय रूप में भी इसका यूज होता है। उसी तरह से स्पेन जो है ऑल्सो नॉन स्पेंसिया ओलरिसिया, और ये जो है मेंबर है अमरनाथेसी फैमिली, यानी जो ये था आपको। तो इस तरह से आप देखेंगे ये भी एक फीड्स की तरह ही होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में कौन कौन सा। तो और अगर आपको जानना हो तो आप जरूर इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो चीज जानना हो जैसे कि मैंने बताया तो आप कमेंट में जरूर लिखें, ताकि सिर्फ ये नहीं कि गुड वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो है, लाइक दे दिया, ये नहीं। इस तरह से तो फिर आपका ग्रोथ नहीं होगा। आप इससे संबंधित क्वेश्चन पूछिए कि सर हमको ये जानना है, आप हमको ये बताइए। इससे क्या होगा कि आपका और मेरे के बीच में इंटरेक्शन भी बढ़ेगा, और फिर वी कैन कंसिडर ऑल दिस वेरी सीरियसली। एंड if you are a serious student and appearing 2023 or 2024 to 2025, then you must subscribe our channel, because we will continue basically grow. And as you know, this topic, basically ecology, environment, science, tech and geography, are very significant for the civil services, whether it is prelims or mains. So let's move forward and see the next question. Next question is 49 question. 49 question, it means 49 in set A of the civil services PT.
So, biobrick technology is talk about in which one of the following situations. So, what is biobrick technology? Number one, A. Restoration of damaged coral reef. B. Development of building material using plant residues. Identification of area for exploration and extractions of shale gas. Providing salt lick for the wild animal in the forest protected area. So, biobrick technology is restoration of damaged coral. Basically, it is bio rock. बायो मीन्स बायोलॉजिकल रॉक। तो बायोब्रिक टेक्नोलॉजी की, बायो रॉक टेक्नोलॉजी के बारे में ये पूछा गया है और इसमें बताया गया है कि डैमेज जो कोरल रीफ जो डैमेज हो जाता है उसको रिस्टोरेशन के लिए, उसी तरह से बिल्डिंग मटेरियल के डेवलपमेंट के लिए, उसी तरह से जो प्लांट्स है, उसी तरह से आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया, एक्सप्लोरेशन ऑफ द सेल गैस के एक्सप्लोरेशन के लिए, अन्वेषण के लिए, खोज के लिए, प्रोवाइडिंग द साल्ट लीक, जो साल्ट लीक हो जाता है जो फॉरेस्ट में, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए किया गया। तो इसमें आपका है कि ये कोरल रीफ को बचाने के लिए, ये कोरल रीफ को बचाने का सबसे बेहतरीन और सबसे पर्यावरणीय अच्छा विकल्प माना जाता है। तो इसका उत्तर होगा ए, जैसा कि मैंने बताया इसका उत्तर होगा ए। तो चलिए इसको हम विस्तृत रूप से देखते हैं, एनालाइज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। So, biorock technology is an innovative process originally initiated in 1976 by the architect वुल्फ एच हिलबर्ट। तो ये हिलबर्ट साहब द्वारा 1976 में किया गया था और नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल इन द सी। तो बेसिकली जब इन्होंने खोजा था, सो biorock materials are only marine construction material that grow, get stronger as are self-repairing. Wolf called it, so sir, Wolf called it mineral accretion, another technology, and secret or sea mount, secret और sea mount। तो ये जब खोजे थे तो इन्होंने उस वक्त इसको बायोरॉक नहीं कहा, ये क्या कहा, मिनरल एक्रेशन टेक्नोलॉजी, सीक्रेट, सीक्रेट, सीक्रेट नहीं सीक्रेट, और सीमेंट, सीमेंट नहीं सीमेंट, SEAMENT, सीमेंट इन्होंने कहा। तो ये क्यों कहा, तो इसको आप ये समझिए कि इन्होंने कहा, लेकिन जब ये खोजा 76 में खोजा, अब 80 के दशक में इनके और एक मित्र साहब आ गए। तो इन 1987 थॉमस जे गोरू invited Wolf to Jamaica, work with him to develop application for the coral reef restoration, and they decided to call the technology biorock because it is not only grow in the hard limestone rock for the structural purposes, greatly increase the growth of coral and marine organism. That's why they increase the growth of coral reef, marine organism. That's why it is called biorock. So they founded a global coral reef alliance, and also these two people found a global coral reef alliance and pursue the research and development of the biorock technology. That's why this is called biorock technology. तो हुआ क्या कि एक थॉमस साहब थे, इन्होंने 87 में इनको जमाइका के थे, उन्होंने बोला कि भाई साहब आप आइए जमाइका में, हमारा ये देखिए कोरल रीफ ये हो रहा है। तो इन्होंने जो अपना किया था, तो ये तो कहते थे मिनरल एक्रेशन टेक्नोलॉजी सीक्रेट, लेकिन जब वहाँ प्रैक्टिकल किया तो देखा कि कोरल रीफ काफी तेजी से बढ़ने लगा, उसके साथ साथ जीव जंतु भी वहां आने लगे। तो इनको फिर एहसास हुआ कि अरे साहब ये तो जीव जंतु को बढ़ा रहा है, बायो प्रोसेस को बढ़ा रहा है। तो इनको कहा कि भाई आप ये रॉक को बायो रॉक कह दीजिए साहब। तो बोला ठीक है हम बायो रॉक कहेंगे। तब उसके बाद इन्होंने एक संस्था स्थापित किया जिसका नाम था ग्लोबल कोरल रीफ अलायंस, और इसमें उन्होंने बायो रॉक टेक्नोलॉजी, तो अभी भी आप देखें, सो बायो रॉक टेक्नोलॉजी इज द ओनली सस्टेनेबल मेथड टू प्रोटेक्टिंग फ्रॉम कोरल्स फ्रॉम द मास एक्सटिंक्शन फ्रॉम द ग्लोबल। अब ये ग्लोबल वार्मिंग से जो आप जानते हैं कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, कोरल मर रहा है, तो उसका एक अच्छा सा मेथड ये है बायो रॉक टेक्नोलॉजी। तो ये काफी पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में अगर और जानना हो तो आप हमारा चैनल पे सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए आगे चलते हैं। अब है
7th and 77th of the set A question of 2022 prelims. Which one of the following statement best describe the polar code? Number 1, it's the international code of safety for the ship operating in the polar water. B, it's the agreement of the country around the North Pole regarding the demarcation of their territory in the polar region. Choice C, it is a set of norms to be followed by the country whose scientists under research study in the North Pole and the South Pole. And another, it is a trade and security agreement of the member of country of the Arctic Council. तो इसमें पूछा गया है कि पोलर कोड या इसको आप हिंदी में पोलर संहिता क्या है। तो ये पोलर संहिता या पोलर कोड के बारे में कहा गया है कि ये इंटरनेशनल कोड फॉर द सेफ्टी एंड शिप ऑपरेटिंग द पोलर वाटर, ये सही है। ये एक कोड बनाया गया है जिसमें है कि जो शिप है उसका सेफ्टी, आपका शिप का जो ऑपरेशन इंटरनेशनल लेवल पे होता है उसके लिए। इट इज द एग्रीमेंट ऑफ द कंट्री अराउंड द नॉर्थ पोल, ये भी गलत है। और इट इज द फॉलोड बाय द कंट्री ऑफ द रिसर्च, ये भी गलत है, रिसर्च का कोई कोड नहीं है। और ये भी आपका गलत है, तो आंसर इसका ए हो गया आपका। तो ये आपका आंसर है। चलिए इसको हम और डिटेल में देखते हैं। पोलर कोड को 1 जनवरी आप देखेंगे 2017 में लागू किया गया। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे शिप्स थे जो पोलर एरिया में चले जाते थे और वहां पोल्यूशन करते थे, खास करके जो लीक वगैरह तेल का होता, तो इसीलिए पोलर कोड लगाना बहुत जरूरी हो गया था। तो 1 जनवरी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप ए मैंडेटरी पोलर कोड टू प्रोवाइड फॉर द सेफ शिप ऑपरेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन द पोलर। एक तो शिप को आप सेफ तरीके से जाए, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, तेल नहीं बर्बाद हो जाए और इन्वायरमेंटल को भी नुकसान ना हो, इसलिए ये कोड बनाया गया। तो ये जो था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कोड ऑफ द शिप ऑपरेटिंग पोलर वाटर, जिसको पोलर कोड कहा जाता है, मैंडेटरी अंडर द बोथ। अब ये क्या है, ये मैंडेटरी है, यानी जो उसके अंदर नियम बनाए गए हैं, अगर आपको जाना है पोलर एरिया में तो ये सारी चीजें आपको मैंडेटरी करनी पड़ेगी। तो क्या क्या है, तो ये मैंडेटरी जो कानून है वो है सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप, जिसको मारपोल कहा जाता है। मारपोल का मतलब आप यहां देखें तो ये शॉर्ट फॉर्म है। मार का मतलब मैरीन है, पोल का मतलब पोलर है, यानी मैरीन पोलर एरिया जो है, मैराइन पोलर एरिया को आपको ये करना। तो ये आपका क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपका ए था। चलिए आगे चलते हैं और आगे 8वां क्वेश्चन है 80। सो इस 8th क्वेश्चन 80 फ्रॉम आवर सेट ए। Which one of the following is the best describe the term greenwashing, conveying the false impression that company produce are eco-friendly and environmentally sound? Non-inclusion of the ecological environmental cost in the annual financial statement of a country. Ignoring the disastrous ecological consequences while undertaking infrastructure development. Making mandatory provision for the environmental cost in a government project program. तो ये 8वां क्वेश्चन जो है इसमें बताया गया है which one of the following is best describe the term green washing, यानी ग्रीन वॉशिंग जो शब्द है, शब्दावली, इससे आप क्या समझते हैं। तो यह है conveying a false impression that company produced are eco-friendly and environmentally, ये सही है। ये होता क्या है कि कंपनी आपको दिखाएगा कि ये हमारा प्रोडक्ट बहुत ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ये देखो ये है, ये है, ये है, लेकिन ये झूठ बोलता है, ये फॉल्स करता है। क्योंकि जब आप उसका यूज करेंगे तो वो ज्यादा इमिशन करेगा, उसका इमिशन भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो ये आपका आंसर ए है। तो इसी को चूंकि वो ऊपर से दिखा दिया कि हमारा ये इन्वायरमेंट, तो वो ग्रीन वॉशिंग किसी को कहते हैं। जिस तरह से पहले कहते थे ना कि कोई झूठ बोल रहा है, व्हाइट वॉशिंग कर रहा है, कोई कांड कर दिया उसको बचा रहे, तो व्हाइट वॉशिंग करना होता है। बस उसी तरह से ये ग्रीन वॉशिंग है, यानी आप ये करें तो इसी तरह से नॉन इंक्लूजन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो चलिए इसका आंसर फिर आपका हो गया ए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 8वां। ग्रीन वॉशिंग क्या है, तो ग्रीन वॉशिंग जो है प्रोसेस ऑफ फॉल्स इंप्रेशंस प्रोवाइडिंग मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। अब क्या होता है कि इसमें मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, यानी आप जो है सपोज कीजिए कि अगर आप कार्बन का उत्सर्जन 20 कर रहे हैं तो उसमें बता रहे हैं हम 5 ही कर रहे हैं, इस तरह से। कंसिडर द इट इज कंसिडर्ड एन
substantive claim of the device of the into the believing the company product environment friendly, यानी आप तो कह रहे हैं कि environment friendly है लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। उसी तरह से फॉर एग्जांपल कंपनी इन्वॉल्व इन ग्रीन वॉशिंग बिहेवियर माइट मेक द क्लाइम देयर प्रोडक्ट आर रिसाइकिल्ड, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बोलेगा कि हमारा रिसाइकिल्ड मटेरियल से है, इसको कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, ये हमारा एनर्जी सेविंग है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसी तरह से ऑल्दो द सम ऑफ द एनवायरमेंटल क्लाइम माइट बी पार्टली ट्रू, कभी कभी ऐसा होता है कि दो क्लाइम के, एक रिसाइकिल्ड मटेरियल, दूसरा बोला एनर्जी सेविंग। चलो रिसाइकिल्ड मटेरियल क्या हो गया, मान लेते हैं सही में रिसाइकिल से उन्होंने बनाया है, लेकिन जो एनर्जी सेविंग का बता रहा है कि 5 हो रहा है, तो मतलब हम 25 कर रहे हैं सेविंग, वो 25 की जगह वो 5 ही सेविंग हो रहा है, तो ये क्लाइम फॉल्स, ये क्लाइम सही भी हो सकता है, तो पार्शियली ट्रू हो सकता है। कंपनी इंगेज इन ग्रीन वॉशिंग टिपिकली एक्सैजरेट देयर क्लाइम बेनिफिट एंड अटेम्प्ट द मिसलीड द कंज्यूमर। अब वो जो कंज्यूमर है जिसको हमको ग्रीन प्रोडक्ट बनता है उसको मिसलीड ये कंपनी करते हैं, क्योंकि उनको तो पैसा कमाना है। तो अब आगे देखते हैं, इट इज ए प्ले ऑफ द टर्म व्हाइट वॉशिंग विच मीन्स यूजिंग मिसलीडिंग। अब जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन तो कहते हैं व्हाइट वॉशिंग कर रहा है, बस उसी का समझिए कि एक टर्म है ग्रीन वॉशिंग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग आगे। सो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, with the reference of Indian law about the wildlife protection, consider the following statement. A. Number 1, wild animal are sole property of the government. Number 2, when wild animal is described protected, such animal is entitled for the equal protection whether it is found in the protected area or outside protected area. Another is apprehensions of the protected wild animal becoming a danger to the human life is sufficient ground to capture or killing. Now, which of the following statement is given above is are correct? Choice A 1 and 2, choice B 2 only, choice C 1 and 3, choice D 3 only. So wild animal are sole property of the government. Yes, right. When animal described protected, such as the animal is entitled for the equal protection whether it is found protected area or outside. It is also right. Apprehensions of the protected wild animals becoming a danger of the human lives is sufficient ground to capture or killing. It is not only apprehension. If they really pose to threat or attack the human being, or they capture or killing, but not only apprehensions or protected animal. So the third is not correct. तो ये आप देखेंगे तो विल्ड एनिमल जो जंगली जानवर है, वो जो इसमें ये बताया गया है जो हमारा वन्य जीव अधिनियम है उसके अंतर्गत, तो ये बताया गया है जो वन्य जीव है वो पूरी तरह से जो है सो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो ये सही है। उसी तरह से जब ये जंगली जानवर को कोई भी वन्य जीव को प्रोटेक्टेड बोल दिया जाता है, तो वो कहीं भी रहे तो वो प्रोटेक्टेड है, चाहे वो जंगल के अंदर है या जंगल के बाहर भी रहे, तो ये बिल्कुल सही है। उसी तरह से केवल शक के आधार पे कोई भी प्रोटेक्टेड एनिमल को कि वो इंसान के लिए खतरा है और ये ऐसा शक है तो उसको हम कैप्चर कर लें या मार दें, तो ऐसा नहीं है। जब तक कि वो रियल में खतरा ना हो जाए शक के आधार पे उसको हम नहीं मार सकते, तो तीसरा गलत है, तो इसका आंसर आपका ए हो गया। तो चलिए इसको देखते हैं ए। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। बम्बई हाई कोर्ट रूल्ड दैट wild animals including the tigers should be treated as government properties all purposes and any damage caused by them should be compensated by the government. Another is the law governing the subject of the Wildlife Protection Act 1972 does not discriminate between the animal found in the protected area or outside. This is so 1 and 2 is right. So provide equal protection wild animal irrespective to their where they found, whether it is outside or inside of the forest. So only the wild animal become the danger of the human life is diseased or disabled beyond the recovery can be allowed to capture and kill by the competent authority by the chief wildlife warden of the state. So mere apprehensions of fear that wild animal could danger human life, not the ground of the capture and the killing.
तो बम्बई हाई कोर्ट ने एक रूल दिया था और उसमें उन्होंने बताया था कि जो अधिनियम है उसके मुताबिक आप देखें तो जो भी जानवर है, चाहे वो बाघ हो या कोई भी हो, जंगली जानवर जो भी वन्य जीव है, वो पूरी तरह से सरकार की संपत्ति है और अगर वो जानवर कहीं भी नुकसान करता है तो उसको कंपनसेशन सरकार को देना होगा। उसी तरह से जो 1972 का जो वन्य जीव अधिनियम है उसके तहत ये दिया गया था कि कोई भी एनिमल को उसको आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि वो जो प्रोटेक्टेड है, जो आपका जंगल के बाहर है या जंगल का, अगर जंगल के बाहर है या कहीं भी है जो प्रोटेक्टेड है तो वो प्रोटेक्टेड है, कहीं भी आप उसको नहीं मार सकते। उसी तरह से जो कोई भी जंगली जानवर है वो इंसान के लिए आपका मतलब आपको खतरा हो गया और वो उन्होंने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। और जब देखा कि भाई आप ऐसा नुकसान करने लगा है कि अब हम उसको रिकवर नहीं कर सकते, तब आप उसको मार सकते हैं। तो इस वो भी कैसे कि जो अथॉरिटी है, चीफ वाइल्ड लाइफ, जो कोई भी राज्य का है तो वो उसको ये देगा और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको देगा कि हाँ आप इसको मार सकते हैं क्योंकि ये बहुत खतरा हो गया। लेकिन सिर्फ शक के आधार पे आप नहीं कर सकते हैं। तो ये है आपका। चलिए आगे चलते हैं, आगे में देखते हैं। So let's move forward and see the 10th question. And 10th question, it is 100 in set A questions in the 2022 PT. So see, consider the following: carbon monoxide, nitrogen oxide, ozone and sulfur dioxide. Excess of which above in the environment is causes of acid rain. So basically it is basically asked for the acid rain. So see here, 1, 2 and 3, 2 and 4 only, 4 only, 1, 3 and 4 only. तो इसमें अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन के बारे में पूछा गया है। इसमें लिखा गया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हाँ ये है, ओजोन नहीं है और सल्फर डाइऑक्साइड तो जानते ही हम लोग, सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड ये बनता है एसिड में। तो इसमें इसकी अधिकता और इसकी अधिकता होता है, तो इसका मतलब हो गया आपका नाइट्रोजन और 2 और 4 यानी कि बी। सो इट्स आंसर इज बी। So see the explanation. Acid rain. As you know, the term acid rain refers to the deposition of wet or dry acidic material from the atmosphere to the earth surface. Another is phenomenon of acid rain is discovered in 19th century by the Robert Angus Smith. Basically, he is a pharmacist of Manchester, UK, who noted that there were high level of acidity rain falling over industrial region of England compared to them to the much lower level of acidity in rain falling over less polluted area, basically the coast and the agricultural area, agricultural region. सो ये अम्ल वर्षा के बारे में। तो अम्ल वर्षा का मतलब वो होता है कोई भी अम्लीय चीज जो वायुमंडल से आके अर्थ के सरफेस पे आएगी उसको हम लोग, चाहे वो वेट हो या ड्राई हो, उसको हम लोग एसिड रेन के तौर पे जानते हैं। और इस प्रक्रिया की खोज जो है वो 19वीं शताब्दी में की गई थी रॉबर्ट अंगस स्मिथ द्वारा। ये बेसिकली एक फार्मासिस्ट थे और ये मैनचेस्टर के रहने वाले थे और यूके के थे। तो इन्होंने ये नोटिस किया कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है इंग्लैंड का, वहाँ वर्षा के दौरान ज्यादा अम्लता पाई जाती है, उसके उल्टा जो कोस्टल एरिया है या जो कृषक क्षेत्र है, जो गांव देहात में जहाँ पॉल्यूशन कम है, वहाँ एसिडिटी नहीं पाई जाती है। तो इन्होंने इनका नाम एसिड रेन दिया। सो स्मोक इमिटेड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज आर द मेजर सोर्स ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड। जैसा कि हम लोग जानते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का जो बेसिक होता है सल्फर डाइऑक्साइड, उससे ये सल्फ्यूरिक एसिड आपका उस तरह का बनता है। उसी तरह से जो आपका स्मोक होता है जो आपके गाड़ी से निकलता है, व्हीकल्स से, वो मेजर सोर्सेस ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का तो ये था। तो ये इन्वायरमेंट का 10 क्वेश्चन था। अब हम लोग अगला सेक्शन में जाते हैं ज्योग्राफी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ज्योग्राफी का 10 क्वेश्चन पूछा था, उसमें से 7 तो हमारे डायरेक्ट सिविल सर्विसेज विद ज़की से थे, बाकी रेस्ट जो 3 थे, जो जैसा कि मैंने बताया कि 3 जो आउट ऑफ थे उसको हम लोग बात करें। सो आउट ऑफ दीज 3 क्वेश्चन वी एनालाइज एंड डिस्कस ऑल।
So number 1 is Gondikota Canyon of South India was created by which of the following river? Kaveri, Manjara, Pennar, Tungabhadra. So basically it is Gondikota Canyon is situated in the Pennar river. So basically it is answer is Pennar, so C answer. Basically all these are related to the map work and all that, and as you know, as we promised you that if I have completed our channel completed 500 subscription, then we launch a free map class. तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था 500 अगर सब्सक्राइबर आप उड़ाते हैं तो उसके बाद हम एक मैप क्लास करेंगे। अगर आप 2023 में देना चाहते हैं और आप जान रहे हैं कि अभी 462 हमारा सब्सक्राइबर है 462, तो इसका मतलब है कि आप लोग अगर सिर्फ 30-35 बच्चे ही अगर आप सिर्फ एक ग्रुप में कर दें और अगर आप लोग एक कर दें तो इसमें जल्द ही 500 हो जाएगा। लेकिन अब आप लोगों की मर्जी है, आप लोग जहाँ भी अपना करना चाहिए, चूंकि हम फ्री में दे रहे हैं, ये काफ़ी एफर्ट है। आप लोगों को जो जब जानते हैं कि संसाधन की कमी की वजह से भी फिर भी हम दिन रात जाके ये सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं, और ये बेसिकली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे कोचिंग में आप जाते हैं और आप बिल्कुल ठगा महसूस करेंगे, क्योंकि वो उतना मटेरियल दे देगा, या तो कुछ आप इतना स्टैंडर्ड में जाएंगे इतना ज़्यादा मटेरियल दे देगा, कहेगा कि हर चीज़ को आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं होता है, आपको सर्टेन सेलेक्टिव चीज़ पढ़ना है। आखिर इसकी स्ट्रेटेजी क्या है इस पर भी हमने बात किया है, और उसके अलावा भी अगर जानना हो तो आप हमारे क्लास लेक्चर में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका थोड़ा सा डिटेल। So Gondikota Canyon, and basically it is almost forgotten gorge of the Gondikota situated on the Pennar River, Andhra Pradesh. So it is also known as the Grand Canyon of India. So it is also known as the Grand Canyon of India. So see here, Grand Canyon of India. This is Grand Canyon. This is so beautiful. So basically it is Pennar River. Let's see second. The term Levant often heard in the news roughly corresponds to which of the following region? Choice A, region along the eastern Mediterranean shore, region along the North African shore stretching from Egypt to Morocco, region along the Persian Gulf and the Horn of Africa, the entire coastal area of Mediterranean Sea. So Levant. So basically Levant is region along the eastern coast of Mediterranean shore. This is North Africa and Gulf of, and this is, so answer is A. So see here, Levant. Basically, Levant is a historical geographical term referring to the large area of the eastern Mediterranean region of Western Asia. So it is narrow sense which is used today archaeology and other cultural context, basically Levant. So equivalent to the stretches of the border of the Mediterranean in southwestern Asia, that is the historical region of the Syria. Syria means here is Greater Syria, in which includes the Syria, present-day Syria, Lebanon, Jordan, Israel, Palestine, and most of the Turkey, southwest and the Middle East. Middle East operate. So these are basically greater, you can call it Greater Syria. तो लीवांट के बारे में यहाँ कहा गया है। तो लीवांट जो है बेसिकली जो भूमध्य सागर का पूर्वी तट है उसमें है, और उसमें जैसे कि आप जानते हैं कि पहले जमाने में जो सीरिया था तो वो ग्रेटर सीरिया, यानी जो वर्तमान में सीरिया है उससे अलग, तो उस सीरिया में क्या था, लेबनान भी था, जॉर्डन भी था, इजराइल, फलस्तीन, और ज़्यादातर तुर्की का जो साउथ वेस्ट था और मिडिल ऑफ द यूफ्रेट जो था वो एरिया पूरा आप देखेंगे। तो इसको जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैप वर्क जितना जल्दी करेंगे आप लोग समझेंगे वर्ल्ड और इंडियन मैप, तो बहुत सारे वो क्वेश्चन आने वाले, सिर्फ यूपीएससी नहीं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो इसीलिए आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर की गति बढ़ाइए। आप नहीं बढ़ाएंगे तो हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन फिर हम धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, फिर छोड़ देंगे, या फिर हो सकता है कि बहुत सारे लोग करते हैं तो फिर इसको हम प्रोफेशनली बना लेंगे, फिर यही फीस देके आप आएंगे।
तो अभी हम आपको फ्री में दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा. So let's see the Levant. See here. This area. This area is called Levant. And if you go east of this area is called Fertile Crescent. So basically it is Mediterranean Sea, and it is the eastern coast of the Mediterranean Sea. So the eastern coast of the Mediterranean Sea, which includes Syria, Lebanon, and Israel, Palestine, etc. So this is called Levant. So let's move forward and see another question. Another question is 85th of the set A3. In the reference of the United Nations Convention of the Law of the Sea, consider the following statement. A coastal state has the right to establish a breadth of its territorial sea up to the limit of 12 miles, measured from the baseline determined according to the convention. Second, ship of all states, whether coastal or landlocked, enjoy the right to innocent passage through the territorial sea. Exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baseline, which are the breadth of the territorial sea is measured. So see here, which of the following statement is above are correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, and 1, 2, 3. So see here, a coastal state, territorial sea, 12 mile. Yes, it is right. Ship of all states, whether coastal or landlocked, enjoy the right innocent to passage throughout the territorial sea. It is also right. And the exclusive economic zone 200 beyond not to extend 200. It's also, so it is all right. 1, 2, and 3. So answer is D. So see here, what is the convention's law? So United Nations Convention Law on the Sea, basically it is into 1982 international agreement that established the legal framework for the maritime activities. It is also known as the law of the sea. Law of the sea divide marine area into the zone of the internal water, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, and the high seas. Basically, it is divided into internal water, number 1, territorial 2, contiguous 3, and exclusive ecozone 4, and 5 means high sea. High sea means it's go beyond the open sea. So as the article of 17 of the law of the sea, ship all the states, whether coastal or landlocked, enjoy the right to innocent passage through the territorial army. So territorial sea. So the article 70 give the right of the any country, whether it is landlocked or coastal country to encourage the passage through the territorial sea. So that's why it is all 3 is right. तो ये हिंदी में इसको हम लोग ये समझें, ये जो कानून है ये 1982 में आया था और इसके तहत समझिए 5 जोन बना. एक तो इंटरनल वाटर जो आंतरिक थे, एक तो टेरिटोरियल सी, फिर कॉन्टिजियस जोन, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमी, उसके बाद हाई सीज हुआ था. और इसका जो अनुच्छेद 17 है, आर्टिकल 17 है, उसके तहत है कि कोई भी देश, चाहे वो भूमि अवरुद्ध हो या फिर वो कोस्टल सिटी हो यानी कि तटीय क्षेत्र हो, वो इस पैसेज का, इनकनेक्ट पैसेज का यूज कर सकता है. तो इसका आंसर जैसा कि डी दिया था, तो इसको देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये जैसे कि मैंने बताया, तो एक तो इंटरनल वाटर, जैसे आपका ये लैंड है, अब लैंड के अंदर कोई नदी है और कोई जैसे कि गंगा है या और कोई है, तो ये आपका इंटरनल होगा. इंटरनल बेसलाइन से आगे हम लोग देखेंगे तो फिर
उसके बाद 12 नॉटिकल माइल जो है वो टेरिटोरियल सी कहलाता है। उसके बाद फिर आगे आप जाएंगे 12 माइल तो वो कॉन्टिजियस जोन कहलाता है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और फिर यहां से आपका 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल तक जब जाते हैं 200 नॉटिकल माइल, तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जिसको शॉर्ट में EEZ बोला जाता है। तो यहां तक आपका इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाद हाई सीज आ जाता है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया, ये पूरा जो आप देखेंगे, और ये 5वां हो गया। अब what is land, what is continental shelf and all that, if you want to know more about that, then you must join our regular class or subscribe our channel for all information. Basically it is IAS related videos. तो जैसा कि हमने ये अभी बताया कि इस तरह से आप देखेंगे तो डिफरेंट आपका है। तो इस तरह से आप देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, जिसको महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं, उसी तरह से निमग्न तट कहते हैं। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है इसके लिए आप क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग आगे जो है वो है साइंस एंड टेक के बात हम लोग करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया सिर्फ 3 क्वेश्चन ही ज्योग्राफी से था, 7 क्वेश्चन से पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब साइंस एंड टेक में जो था वो तकरीबन आपको 14 क्वेश्चन था, जिसमें से 5 मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया है, और ये पिछला वीडियो है, इसको आप जरूर देखें। So 5 we already discussed in the previous video, this video. So let's move forward and see section science and tech. Number 1, consider the following: आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा. Which of the above built on the top of the open source digital platform? So it is called open source digital platform. 1 and 2, 1, 2, 3 and 4 only. 1, 2 and 4 only. 1, 2, 3, 4 only. Basically these all are open digital. So it means D. So see here, what is open source platform? So if any platform that allow access to the source code any other uses developer, so it is one of the wide variability of the open source product. So see here, basically it is in contrast closed source, which is a type of the proprietary software reverses write only to the authorized individual. Open source aim to allow the equal access to anyone and everyone. And so तो ओपन सोर्स के बारे में ये सीधा समझिए कि ये ऐसा इंटरनेट पे मौजूद है कि इसको हर कोई यूज कर सकता है। इसमें अगर हम देखें तो क्लोज सोर्स क्या होता है? क्लोज सोर्स ऐसा होता है कि सर्टेन आपका ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिस पे आपको अथॉरिटी दी जाती है, आप उसको यूज कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं क्लोज। उसका उल्टा क्या है कि इसमें ओपन सोर्स में कोई भी एवरीवन एंड ईच वन, कोई भी आपका एनीवन, कोई भी इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आरोग्य सेतु कोविड के दौरान बना, इसको सब कोई यूज कर सकते थे, उसको सेल्फ असिस्टेंट किया जाता था। उसी तरह से दूसरा था डिजिलॉकर। डिजिलॉकर जो था ये गवर्नमेंट जो ऑफर किया था सिटीजन्स को फ्री प्लेटफॉर्म टू एक्सेस द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरह से दीक्षा जो था ये भी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी था, ये मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर इंडिया, विच इनकॉर्पोरेट द इंटरनेट स्केल टेक्नोलॉजी एंड इनेबल टू द सेवरल यूज ऑफ द सॉल्यूशंस फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग। बेसिकली टीचिंग और लर्निंग की बात अगर हम लोग करते हैं, जैसे हम आपको सिखा रहे हैं, तो इस तरह का जो टूल है ये भी इस तरह का ओपन सोर्स किया गया ताकि सबको इजीली ये सारी चीजें हो, तो इसको ओपन सोर्स कहा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग दूसरा पे। With the reference of Web3, consider the following. Web3 technology enable people to control their own data. In Web3 world, there can be a blockchain-based social network. Web3 is operated by user collectively rather than in corporation. Which of the above statement is given are correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3. Basically, it is all 1 and 2 and 3. Basically, it is enable the control their own data. You can control on your data, and it can blockchain based. Yes, and it is operated collectively rather than corporation. Yeah. So it is D answer. So let's see explain.
तो इसका आंसर डी हुआ और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो जो वेब 3 है ये बेसिकली थर्ड जनरेशन ऑफ द वेब का है। अब आप जानते हैं जो सबसे पहले चला था www हम लोग कहते थे जब शुरू इंटरनेट चला था, इसको वर्ल्ड वाइड वेब। तो वो क्या था, शुरू में जो किया गया था वेब 1 था। अब वेब 1 में था क्या कि एक ब्राउजिंग था, उससे लोग यूज करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि उसी का ये जो है ये थर्ड जनरेशन है और ये अभी भी इवॉल्व हो रहा है। So web is also known as World Wide Web. It is foundation layer how to internet use providing the website application and services. Web 3 is still evolving and be defined, and such there is not universally accepted definition. But what is clear is Web 3 is have a strong emphasis of decentralized application and make extensive use of blockchain. तो blockchain भी होता है, extensive use भी होता है टेक्नोलॉजी का। तो इसी तरह से आप देखेंगे तो वेब 3 ऑल्सो मेक द मशीन लर्निंग टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू हेल्प द एम्पावर मोर इंटेलिजेंट एंड डेडिकेटली एप्लीकेशन। मतलब इसमें आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो इम्प्लीमेंट होता है वो सारा एप्लीकेशन आप देखेंगे तो जो भी आप आराम से इंटेलिजेंस एंड एडेप्टिव एप्लीकेशन जो आपको आसान हो सकता है वो आप एडाप्ट कर सकते हैं। तो ये वेब 3 की खासियत है, इसको आप मतलब ये कर सकते हैं। तो ये आपका वेब 3। आगे चलते हैं हम लोग और दैट्स द थर्ड क्वेश्चन, विच अमंग द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज SaaS consider the following statement. SaaS buyer can customize the user interface, can change data field. SaaS user can access their data through their mobile devices. Outlook, Hotmail and Yahoo Mail are the form of SaaS. Which of the above statement is correct? Statement are correct. 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, D answer. So basically it is SaaS buyer can customize their interface. SaaS can access their data through the mobile and computer, and also Hotmail and Yahoo Mail are the form of SaaS. तो इसको आप देखेंगे ये एक सॉफ्टवेयर है जो आप देखेंगे तो ये इस तरह से है कि इसमें आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं सर्टेन पैसा दे करके, इसको एक्सेस भी कर सकते हैं, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। और ये जो आप यूज करते हैं आउटलुक, हॉटमेल, याहू, ये सारा जो है इसका ही एक एग्जाम्पल के तौर पे SaaS का ही एक एग्जाम्पल है। तो चलिए देखते हैं। सो सी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। SaaS is defined as the software distribution model developed on the internet in the cloud services provider, and basically application is non-on-demand software and pay as you go application. तो इसको अदर नाम से भी जानते हैं, जैसे ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, पे एज यू गो एप्लीकेशन भी कहते हैं। SaaS allow users connect use to the cloud based app over the internet. तो कोई भी क्लाउड बेस्ड होता है जब आप कोई भी अपना डेटा उसमें रखते हैं। बेसिकली कॉमन एग्जांपल इसका आप देखें जैसे ईमेल है, आपका कैलेंडर है, ऑफिस टूल्स है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट 360 है, 365 है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है ये क्लाउड बेस्ड होता है। आप भी अपने कोई डेटा या कोई चीज आप यहाँ पे रख सकते हैं ये, और इसका सर्टेन जैसे कि आप मान लिया 15 GB तक आपका लिमिट है, उसके बाद आपको सर्टेन पैसा पे करना पड़ता है, और जैसे कि पे एज यू गो द एप्लीकेशन। तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन भी आपको देता है, आप परचेज करेंगे उसी में से आप देखेंगे तो ऐप को आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमाइज भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसी तरह से देखेंगे तो एनीवन इसमें आप डाटा जो है एक्सेस कर सकते हैं, एनीवन डेटा फ्रॉम द क्लाउड का यूज करके, जैसे आपका ईमेल आप मोबाइल में लगा लीजिए, मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। सो एज एनी इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर और मोबाइल, कोई भी इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर और मोबाइल हो तो उसको आप ये कर सकते हैं। तो इफ यू यूज्ड, जैसे कि अगर आप यूज करते हैं ईमेल सर्विसेज, आउटलुक, हॉटमेल, तो ये ऑलरेडी आप यूज कर रहे हैं। इसके बारे में आप देखते हैं उसमें ऐड आता होगा कि आप अच्छा आपका ये ईमेल बढ़ गया आगे करें, तो इस तरह का जो ऐड आता है तो ये यही है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आगे तो आगे चलते हैं हम लोग, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द फोर्थ। Which one of the following statement best reflect the idea behind the fractional orbital bombardment system often talked about in media? So, hypersonic missile is launched into the space to counter the asteroid approaching towards the Earth and explode into the space. B. A spacecraft
land on the another planet after making several orbital motion. A missile put into the stable orbit around the Earth and deorbit a target on the Earth. A spacecraft moves along the comet with the same speed and places probe to the interface. So see, let's hear. A hypersonic missile launched into space to counter the asteroid approaching Earth. It is not. So if some hazardous asteroid coming towards the Earth, then scientists use another trick. It is called DART. D-A-R-T. DART. DART means double asteroid redirecting test. So basically it is DART, not fractional bombardment. Another is a spacecraft land on another planet after making several orbits. It's also wrong. Here is written fractional orbit. So here the substance used in this, it is used not full orbit but a fraction of orbit. So it is fractional orbit. So this is also wrong. A missile put into the stable orbit around the Earth and deorbit after target on the Earth. It's right, because if you see a missile put on the orbit and they go to the target, so it's use only a fractional of the orbit. That's why it is called fractional orbital bombardment system. So C is right. A spacecraft move along the comet and the same speed and same probe to the surface. It's also wrong. तो इसको देखिए, ये फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम जिसको फॉब्स कहा जाता है, तो ये फॉब्स जो है ये बेसिकली एक नई टेक्नोलॉजी है जो आप स्पेस से ही रह के आप कर सकते हो, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसका कोई मतलब इससे बचने का कोई सिक्योरिटी सिस्टम अमेरिका के पास भी नहीं है, इसलिए अमेरिका भी काफी डरा हुआ है, चूंकि ये चीन अभी हाल फिलहाल में इसका ये किया था, तो इसका आंसर है सी। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा जान ले हम लोग। तो जैसा कि मैंने बताया कि हर चीज में हम लोग जानेंगे, थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन आपको हर चीज इसमें जानकारी बहुत मिलेगी। द सिस्टम हैड नो रेंज लिमिट, इट कैन बी टारगेटेड एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ, यानी आप इस स्पेस में वो कहीं भी अर्थ पे वो एक्सेस कर सकता है और आप उसको पता भी नहीं कर सकते। उसी तरह से फ्लाइट पाथ ऑफ द वेयर अबाउट फ्रॉम द सिस्टम डज नॉट रिवील द टारगेट टिल द पेलोड हिट द, जब तक कि आपको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ मारने वाला है। तो दूसरा, उसी तरह से हाउ एवर द ऑर्बिट ऑफ द सिस्टम अराउंड द अर्थ वाज ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ द फुल ऑर्बिट, जैसे कि मैंने बताया इसलिए इसका नाम फ्रैक्शनल ऑर्बिट है, यानी जो पूरा ऑर्बिट है, यानी आपका अर्थ है और इसको कोई ऑर्बिट कर रहा है तो ये फ्रैक्शन ऑफ द ऑर्बिट होता है और ये डिस्ट्रॉय करता है। ये काफी खतरनाक है ये। तो इसका न्यूज में क्या था, जैसे कि मैंने बताया फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट जो है ये आपको फोर्ब्स जो था न्यूज में कैसे आया, तो न्यूज में आया था कि रिपोर्ट्स फ्रॉम द चाइना टेस्टिंग न्यू मिसाइल सिस्टम नोन एज फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम FOB हैव fueled the concerns about the nuclear weapon state and including the military capability and the consequences of the United. Basically it is the most basically concerned for the United States of America. So the flight test conducted in July and August 2021 and rocket launched into the orbital flight which later re-entered the atmosphere and released a maneuverable glide vehicles traveling at the hypersonic speed. So this hypersonic speed is very fast. It is 27th time to the speed of the sound. So it is very fast. So that's it is the new arm race or new arm race technology. Basically it is capable for the warhead of the non-nuclear and nuclear warhead also. तो ये समाचार में आया था, चीन ने इसका परीक्षण किया है जिससे अमेरिका बहुत सदमे में है और चूंकि इसको अभी रोकना बड़ी मुश्किल है, चूंकि ये आपको स्पेस में कहाँ करेगा टारगेट ये पता नहीं होता है, और ये जुलाई और अगस्त में चीन ने इसको टेस्ट किया था। और ये हाइपरसोनिक में इसकी स्पीड इतनी है कि आप नॉर्मल जो फ्लाइट है आपका जो भी सुपरसोनिक या जो भी आपका है वो इसका नहीं है, क्योंकि ये हाइपरसोनिक है, ये ध्वनि की गति से यानी आवाज की रफ्तार से 27 गुना ज्यादा चलता है। तो ये देखिए किस तरह से बम्बार्डमेंट कर रहा है, किस तरह से ये
उड़ा रहा है उसको। तो ये काफी खतरनाक है, ये नया आर्म रेस शुरू हुआ है और ये दुनिया समझ सकते हैं, जबकि इससे पहले एक ट्रीटी हुआ करती थी जो कहा जाता था कि आप उसको स्पेस को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए यूज करेंगे, मानव के भलाई के लिए यूज करेंगे, कोई भी हथियार के लिए यूज नहीं करेंगे। लेकिन अब वो ट्रीटी को ताक पे रख दिया गया है और जितने भी बड़े बड़े जायंट्स मतलब देश हैं जो अपने आप को ताकतवर सुपर पावर समझते हैं, वो सारा अब वहां जाके न्यूक्लियर टेस्ट हर तरह से चीजें कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी: क्लोज सर्किट टेलीविजन, radio frequency identification, wireless local area network. Which of the above are considered at the short range devices technology? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. So see here, closed circuit television is called CCTV. As you know, CCTV, well known and well aware about the CCTV. Radio frequency identification and wireless local network. So all these three are considered short range device technology. As you know, if you use mobile and other Bluetooth, these are also a form of radio technology. So basically it is if you see the closed circuit television and all that, so answer is D. So see here, short range devices. What is short range devices? In short called SRD, are radio devices that offer a low risk interface of the other radio services, naturally because of their transmitted and hence their range is very low. Basically such type of the short range devices may be applied on the many different type of the wireless equipment, including various form of access of the control, including the gate opener. So as basically this is used in the smart home, and alarm and movement detection. Also cordless radio services, including the wireless microphones. So closed circuit television, CCTV. So CCTV is a TV system which, as you know, well aware about it. So it is monitored primarily the surveillance of the security purposes. Another is VLAN, local area. So it is distribution for one or two or more devices. And third one is the radio frequency identification, and it is RFID. Basically this technology means the radio waves transmitted identification. So these all technology are short range device. तो ये short range device services जो है, आप कोई भी शॉर्ट रेंज का यूज करते हैं, जैसे कि आजकल स्मार्ट होम बन रहा है, आप गेट को खोलना हो, आप कोई चीज लाइब्रेरी में टैग कर दे रहे हैं, जो सारी चीजें कर दे रहे हैं वो इसके अंदर आता है। तो ये काफी साइंटिफिक चीजें। आगे चलते हैं हम लोग। तो अब so sixth question and 37th in the set A of the questions 2020. So biofilm can be formed on the medical implant within the human tissues. Biofilm can form on the food and processing surfaces. Biofilm can exhibit antibiotic resistance. Which of the above statement given are correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. So if you see the biofilm, basically biofilm are the bacteria colony, microbes colony. Basically it's implant within the human tissue. Yeah, it's also right. It can form food and food processing surface. Yeah, it's also right. Biofilm can exhibit antibiotic resistance. It is also right. So all these three are right. 1, 2 and 3. So answer is D. So let's see about this biofilm. So as you know, biofilm, the application of the microorganism which microbial cells adhere each other living or non-living surfaces within the self-produced matrix. It's called extracellular polymer substance. It in short EPS. So in this regard, biofilm formation a multi-step process, and with the attachment to the surface, then the formation of the microcolony. So basically it is performed in 5 stages. So see here,
because they have three-dimensional structure and represent community lifestyle. So lifestyle. So microorganisms, they have been metaphorically described as the city of micro. So biofilm are also called the city of micro. Another is biofilm ubiquitous, and they form virtually a surface immense on the natural aqueous environment. So example, water, living on the tissue, tooth, implant and surfaces and medical and dental etc. तो ये बायोफिल्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बायोफिल्म जो है बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव जो होता है वो एक अपनी कॉलोनी बना लेता है, वो कहीं भी आपका बना सकता है। जहां आप देखेंगे तो ये आपको थ्री डायमेंशनल एक कॉलोनी टाइप का बना लेता है और ये बहुत सारे बैक्टीरिया का कॉलोनी रहता है। तो इसको आप इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बायोफिल्म का एक और नाम है जिसको कहा जाता है सिटी ऑफ माइक्रोब्स, यानी सूक्ष्म जीवों का शहर, वो शहर ही बन जाता है। तो बायोफिल्म जो है बेसिकली वर्चुअली ऑल द सरफेस पर आपको मिलेगा, जहां आपको हल्की सी पानी अगर हो जाती है एक्वस, जैसे कि वाटर पाइप पे आप देख लें, इंसान का लिविंग टिश्यू है वहां भी होगा, आपके टूथ, आपके जो दांत है उसके गम में वहां भी आपको ये बायोफिल्म मिल सकता है। उसी तरह से इम्प्लीमेंट मेडिकल डिवाइसेस, डेंटल इम्प्लांट, तो ये जो था आपका वो सही है। उसी तरह से देखिए डिवाइसेस, diverse microorganisms are able to grow food material along the food industry and the biofilm form in the food and food process. तो जो फूड इंडस्ट्री है वहां भी आपको ये बायोफिल्म मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेसिंग का काम करता है तो वहां भी आपको पानी वगैरह मिलता है, तो यहाँ आपको बायोफिल्म मिल सकता है। उसी तरह से देखेंगे बायोफिल्म आर स्ट्रक्चर बैक्टीरियल इम्बेडेड बेसिकली सेल्फ प्रोड्यूस्ड पॉलीमर मैट्रिक्स. So it is EPS, cell and protein and DNA. So bacterial biofilms show increased tolerance of the antibiotic. So it is also antibiotic resistant. So all these three are right. So how these biofilm discovered? So see here, basically when Leeuwenhoek using this simple microscope and first observed the microorganism on the tooth surface of and can be credited to the discovery of these microbiofilm. So biofilm was discovered by Leeuwenhoek, and basically he discovered in the gum, near the gum of the tooth. So you can also, so these phenomenon basically biofilm basically occur in the 5 डिस्टिंक्ट फेजेस. सो सी हियर, तो ये 5 चरणों में आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। तो ये देखिए होता क्या है कि पहले आपको प्लैंक्टोनिक बैक्टीरिया आता है, 1-2 आया तो अटैचमेंट हो गया सरफेस पे। अब वो क्या हुआ, सेल टू सेल एडहेशन का, मतलब एक सेल से दूसरा सेल में जुड़ता गया। अब दूसरा क्या होगा कि बनता गया। पहला स्टेज में आपका हुआ, दूसरा स्टेज में, तीसरा स्टेज में आपका क्या हो गया, प्लोरिफिकेशन हुआ, नहीं बढ़ना शुरू हो गया। तीसरा स्टेज में जब बढ़ना शुरू हो गया तो फिर उसके बाद जब प्लोरिफिकेशन के बाद फिर ये मैच्योरेशन स्टेज पे पहुंच जाएगा, यानी मैच्योर हो जाएगा। और जब मैच्योर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ब्लास्ट करेगा और फिर डिस्पर्सन हो जाएगा। तो ये 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज और 5 फेज। तो ये 5 फेज में आपको बनता हुआ दिखाई देता है, तो इसको बायोफिल्म कहते हैं। सी अनदर 7th. Consider the following statement in respect of the probiotic. Probiotic are made of the both bacteria and yeast. The organism in the probiotic found food we ingest, but they do not naturally occur in our gut. Probiotic help in the digestion of the milk. Which of the following statement is above are correct? One only, 2 only, 1 and 3, 2 and 3. So see, probiotic are made both bacteria and yeast. Yeah, it is right. The organism of the probiotic are found in the food we ingest. It's also right, but do not naturally occur in the gut. It is wrong. They found our guts, but they also naturally found in our gut. Found foods and we ingest it and also naturally found in our gut. So this statement is wrong. This statement is right. Probiotic help
in digestion of milk and sugar. Yeah, it's right. So 1 and 3. So 1 and 3. 1 and 3 C answer. So see here. It is C answer. So see about probiotics. Probiotic are live microorganisms are intended to have health benefit continually applied on the body. So they be found in the yogurt, other fragmented food, dietary supplement and beauty product and etc. तो प्रोबायोटिक्स जो होता है ये एक इसको अच्छा गुड बैक्टीरिया कहा जाता है, ये ह्यूमन के लिए अच्छा होता है, फेलयुक्त होता है, और ये आपको दही में पाया जाता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज वगैरह में पाए जाते हैं, फ्रेगमेंटेड फूड में पाए जाते हैं, ये सारी चीजें आपको मिल सकता है। प्रोबायोटिक और लाइव बैक्टीरिया एंड यीस्ट, तो ये बैक्टीरिया और यीस्ट भी होता है दैट ब्रॉट ऑफ द बेनिफिशियल टू प्रिवेंट सेवरल हेल्थ कंडीशन, तो कई भी हेल्थ कंडीशन को आपको फायदे के लिए करता है। द डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्रेंडली बैक्टीरिया इंक्लूड द Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgarius, Lactobacillus reuteri, etc. are the major probiotics. So Lactobacillus acidophilus बेसिकली ये जो है बैक्टीरिया ये इंसान के अंदर पाया जाता है, नेचुरली जो कहा था उसमें था कि नेचुरली नहीं, ये नेचुरली पाया जाता है। ये आपको इंसान के आपको गट्स में पाया जाता है, उसी तरह से आपके यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स में भी ये पाए जाते हैं। उसी तरह से लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस ये जो है ये बेसिकली आपका जो योगार्ट यानी दही होता है तो उसमें यही पाया जाता है ज्यादातर। उसी तरह से लैक्टोबैसिलस रिटेरी ये आपको बहुत सारे एनिमल्स के गट में पाए जाते हैं नेचुरली। तो ये तीनों प्रोबायोटिक लाइव नेचुरली इन द ह्यूमन बॉडी, जैसा कि मैंने बताया लैक्टोबैसिलिक एसिडोफिलस ये आपके ह्यूमन में पाया जाता है, ये बैक्टीरियम नेचुरली। तो ये सारा प्रोबायोटिक्स आपको पाए जाते हैं। देन नाइन्थ 8th question and it is 90 of the set A. Certain species of which one of the following organisms are well known as cultivator of fungi? Basically cultivator of fungus. So ant, cockroach, crab, spider. So answer is ant. Basically ants are the very social animal and also they cultivate the these fungus. So answer is A. So see here ant. By the time of our ancestor had launched their world-changing Neolithic revolution. So as you know, human start agriculture and some cultivating the crops and etc. But ants had already farming fungi in the South America rainforest about 60 million years ago. So ants are the older cultivators than our humans. तो आप देख जाने ये चींटी जो है ये अभी नया खोज हुआ साउथ अमेरिका में, जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारी चीजें जो है सो रिसेंट आती रहती है न्यूज में, उसी से ये पूछा था। तो ये 60 मिलियन। उसी तरह से अगर हम देखें टुडे 240 species of attany ants, basically it is called leaf cutter ant. Among them are known to the forms of fungus in the Americas and the Caribbean. Still today, their underground crop of fuel complex agriculturally based society. So agriculturally based society also founded the ants, and that are not only sustainable and efficient but also resistance to the disease and pest. So they also, so that's why scientists study these new things. So that's why it is very significant. So basically if you find the leaf cutter ants, so see here these ant are basically found in the South America. Another 9th and the last question of our, so DNA barcoding. See here DNA barcoding can be tool to assess the age of the animal or plant or animal, distinguish among the species that look alike, identify the undesirable animal or plant material in the processed food. Which of the above statement is correct? A 1 only, B 3 only, 1 and 2, 2 and 3. 2 and 3. तो
अब इसमें देखिए, इसमें कहा गया कि डीएनए बारकोडिंग आखिर होता क्या है, तो एसेस द एज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये नहीं होगा। इसको या तो हम लोग कोई भी चीज का हम प्लांट का अगर हम करते हैं तो उसका एनुलर रिंग होता है, उसके आधार पे करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर और कोई चीज होता है तो कार्बन डेटिंग का यूज हम लोग कर देते हैं कोई भी चीज का एज का पता लगाने के लिए, तो ये नहीं होगा। डिस्टिंग्विश अमंग द स्पीशीज दैट लुक, ये सही है। अगर दोनों स्पीशीज एक ही तरह लग रहा हो तब उसके डीएनए बार कोडिंग से आप उसको पता कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जब आप जाते हैं, दो कार्ड आपका सेम टाइप का होता है, उस पर बार कोड लगा होता है, देखने में वो कार्ड सेम रहेगा, लेकिन वो बार कोडिंग से पता चल जाएगा कि ये आपका कार्ड है, ये इनका कार्ड है। उसी तरह से जब दो स्पीशीज है तो डीएनए बार कोडिंग से पता ये दूसरा स्पीशीज है, ये दूसरा स्पीशीज है, तो ये आइडेंटिफाई। उसी तरह आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल प्रोसेस फूड, तो आप प्रोसेस फूड है उसमें उसका ये यूज किया जाता है बार कोडिंग से, कि कहीं इसमें तो ऐसा कुछ नहीं आ गया जिससे आपको हानिकारक हो सकता है, तो 2 और 3, तो 2 और 3 इट मींस डी। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा जान ले। तो डीएनए बार कोडिंग इज द मेथोडोलॉजी टू रैपिडली असेस द आइडेंटिफाइंग स्पीशीज सीक्वेंसिंग अ शॉर्ट रेंज ऑफ स्टैंडर्ड जीन रीजन। तो एक शॉर्ट रेंज को लिया जाता है कंप्लीटली इंडिविजुअल रेफरेंस टू द डेटाबेस ऑफ, इस तरह से। तो इसका एप्लीकेशन किस किस में होता है वो यहाँ देख लीजिए एक एक नजर, क्योंकि हो सकता है कि अगले बार आपको दूसरे तरह से ये क्वेश्चन पूछे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, सेफ्टी असेसमेंट ऑफ द फूड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिप्टिक स्पीशीज, यही क्रिप्टिक स्पीशीज जो लुक अलाइक था, यानी देखने में एकदम सेम लग रहा हो, डिटेक्शन ऑफ एलियन इन्वेसिव स्पीशीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडेंजर्ड एंड थ्रेटेन्ड स्पीशीज, लिंकिंग egg and larval stage of the adult species, securing intellectual right property, from bioresources. Another is framing global management for the conservation of strategy. उसी तरह से identifying plant and even the flowers or the fruit or not available. So this is, and also identify the pollen collected on the body of the pollinating animal. So इस तरह से आप देखें तो कई चीजों को ये डिटेक्ट करने के लिए बार कोडिंग यूज किया जाता है, जिसमें आप देखेंगे तो न्यू स्पीशीज के बारे में आप ये देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताया कि नई प्रजाति को आइडेंटिफाई, ये सारा चीज आप देखेंगे। तो ये देखिए, जैसे कि कोई प्रजाति अगर आपको यहाँ दो एक तरह से लगता हो देखने में, तो फिर आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए, अब देखिए, ये आप देख रहे हैं ये तितली और ये तितली देखने में तो सेम लग रहा है, लेकिन आप इसका देखिए अलग अलग स्पीशीज है। अब इसका बार कोडिंग, अब यहाँ से यहाँ इसका सीक्वेंस देखिए और यहाँ से यहाँ इसका सीक्वेंस देखिए, देखिए साफ अलग है। तो इस तरह से जो अलग अलग सीक्वेंस है, अब जैसे ये देखिए, ये देखिए, तो इस तरह से ये समझ, जिस तरह से आपका बार कोड होता है उसी तरह से ये डीएनए का बार कोड होता है, जिससे वो पता चल जाता है कि ये स्पीशीज अलग है और ये स्पीशीज अलग है। So that's all about total 22 questions. So direct question from the civil services with ZAKI is 10 from ecology environment, 7 geography and 5 science and tech, in total 22. So we already explained these 22 questions in the comprehensive question analysis UPSC PT 2022 in English part 1. So if you want to know more about these all 22 questions, then you must watch this video part first. So another indirect question from the civil services with ZAKI, 10 from ecology environment, 3 from geography and 9 from science and technology. So it is 22. So or if you collect all these 44 questions, it means 44 is the very vital question for the civil services, basically prelims. So we already explained in this video all these 22 questions in part 2. So if we
conclude all total. So all total is 20 plus 10 plus 14 equal to 44. So 44 is a very significant in the point of view of the civil services examination. So in this year and in regular 40 plus question in every year in these subjects, basically ecology, environment, science, tech and geography. So that's why you subscribe our channel and tell your friends and colleagues. So you can also go to my Facebook page. It's same name, Civil Services with ZAKI. So new substances and new, what is the new discoveries, like the new species and the new lake recently, as you know, Lake Fabiano. So this is Lake Utah, and what is the dark lightning and what is the all that. So if you want to know more all that, then you go to our page and like, or if you don't like, no problem, you can also follow for the blog. So new species, what is the rarest minerals of the earth and etc. So let's all about. So thanks for watching this video. We will meet in the next video with the current affairs series, this current affairs series. So first we start with the geography, and geography first video on the oldest evidence of the tectonic plate. So this is very significant topic. So you can watch and this video, and thanks for watching this video. तो अब आगे जो हम देंगे इसी में, जैसा कि मैंने बताया, ये हमने आपको पूरा 44 क्वेश्चन, और 44 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगला वीडियो जो हमारा होगा, तो प्लेट टेक्टोनिक का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है, वो कहाँ पाया गया, ये आप देख सकते हैं। अगला वीडियो होगा हमारा। तो इस वीडियो को आप जरूर हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो आप सभी का इस वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।